داستان سلطان نورالدین زنگ جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ مرسینہ، جمارہ اور مشال مان گئیں۔ پھر مجدد الدین وہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے بھی مطبخ سے کھانے کے برتن اٹھائے اور نشستگاہ میں لگائے۔ سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر جب مرسینہ، مشال اور جمارہ تینوں برتن اٹھا کر مطبخ میں رکھ آئیں اور دوبارہ نشستگاہ میں آ کر بیٹھ گئیں، تب سمرون کو مخاطب کرتے ہوئے مجدد الدین نے مطبخ میں ہونے والی گفتگو کی تفصیل کہہ دی تھی۔ جواب میں سمرون نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر مجدد الدین، لگتا ہے آپ ہمارے سارے کام آپ ہی آسان کرتے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جانے پر رضامند ہیں تو ازبل کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، باقی میں اور کارلوس دونوں رہ جائیں گے۔ ہم اس گھر اور اس کے اندر جو سامان موجود ہے بیچ کر وہاں آ جائیں گے۔ ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ وہاں ہماری رہائش کے لیے کوئی مکان تلاش بھی کیجیے گا، زیادہ مہنگا نہ ہو۔ اس پر مجدد الدین فوراً سمرون کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو وہاں مکان خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دراصل آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی ہماری رہائش نہیں دیکھی ہوئی۔ ہماری رہائش یوں جانے ایک کھلا اور وسیع احاطہ ہے جس کے اندر کافی پھلدار درخت بھی ہیں، کافی جگہ کھلی پڑی ہے، اور پچھلے حصے میں جو رہائش گاہیں ہیں وہ 4-5 کمروں پر مشتمل ہیں۔ ایک میں ہم اور ہماری ماں رہتے ہیں اور دوسرے حصے میں صرف پھوپھی اور اس کی بیٹی رہتی ہے۔ جس مکان میں آپ بیٹھے ہیں اسے بیچ کر آپ جب حلب پہنچیں گے، پھوپھی کو ہم اپنے پاس لے آئیں گے، اس لیے کہ خطلخ اور عبیرہ کی شادی کے بعد پھوپھی وہاں اکیلی تو نہیں رہ سکے گی، لہٰذا شادی سے پہلے ہی ہم پھوپھی کو اپنے ہاں لے آئیں گے۔ وہ حصہ جو 5 کمروں پر مشتمل ہے بالکل خالی ہو جائے گا۔ دراصل ہمارا اور پھوپھی کا مکان یوں جانے ایک ہی کھلے احاطے میں ہے جس کے آگے میدان کی صورت میں کھلا صحن ہے، جہاں پھلدار درختوں کے علاوہ اکثر و بیشتر ہماری ماں اور پھوپھی سبزیاں بھی لگاتی رہتی ہیں۔ ہم تینوں چونکہ باہر رہتے ہیں اس لیے کام میں زیادہ تر عبیرہ ہی ہماری ماں اور پھوپھی کا خیال کرتی ہے اور مدد کرتی ہے۔ کبھی کبھی اگر حالات ٹھیک نہ ہوں تو میں اور خطلخ دونوں ہی لشکر میں شامل ہوتے ہیں۔ شمس الدین کو ہم گھر چھوڑ آتے ہیں۔ مجدد الدین جب خاموش ہوا تو سمرون بول پڑا، مجدد الدین بیٹے، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہاری پھوپھی اور اس کی بیٹی کو وہاں سے نکال کر تمہارے ہاں منتقل کرنا ایک بڑا معیوب قدم ہوگا، اور پھر ایسا ہے کہ شادی کے بعد تم تینوں بھائی اس حصے میں نہیں رہ سکتے۔ میں چاہتا ہوں شادی کے بعد خطلخ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی پھوپھی کے ہاں قیام کرے۔ اگر ایسی صورت میں رہائش گاہ کا وہ حصہ جہاں تمہاری ماں رہتی ہے وہاں تم اور مرسینہ، شمس الدین اور جمارہ رہ سکو گے، لہٰذا ہمیں اپنی رہائش کا علیحدہ اہتمام کرنا ہوگا جہاں بھی بھائی کارلوس، ازبل اور مشال رہ سکیں۔ مجھے امید ہے میرے بیٹے تم بھی اور باقی سب لوگ میری اس تجویز پر اتفاق کرو گے۔ اس موقع پر مجدد الدین نے کچھ سوچا۔ کچھ دیر تک اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے شمس الدین اور خطلخ سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ تھی اور وہ سمرون کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر آپ پھوپھی کے ہاں رہنا
अच्छा ख्याल नहीं करते, मायूब समझते हैं। तो इस सिलसिले में मैं शमसुद्दीन और खतलख से बात कर चुका हूँ। बहरहाल जब आप ये मकान बेचकर हलब आएंगे तो आपको अपनी रहाइश के लिए एक अलहदा और मुनासिब मकान मिलेगा। इसकी मैं आपको ज़मानत देता हूँ। समरून और कारलूस दोनों भाइयों ने मुजद्दिदुद्दीन की इस तजवीज़ को कबूल कर लिया। फिर मुजद्दिदुद्दीन उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, हम तीनों भाई अब जाते हैं। 2 दिन बाद लश्कर यहाँ से कूच करेगा। मैं तो लश्कर के इंतज़ाम के सिलसिले में यहाँ नहीं आ सकूँगा, इसलिए अभी मैं आपसे मिलकर जा रहा हूँ। शमसुद्दीन आएगा और मरसीना, मिशाल और जमारा और खाला अजबल को अपने साथ ले जाएगा। अब हमें इजाज़त दें, हम जाते हैं। इसके साथ ही समरून और कारलूस दोनों उठकर बारी बारी सबसे मिले। इसके मौका पर जमारा की निगाहें शमसुद्दीन पर, जबकि मरसीना बेचारी की उदास निगाहें मुजद्दिदुद्दीन पर टिकी हुई थीं। दोनों आंखों ही आंखों में सब ने एक दूसरे को अलविदा किया। फिर तीनों वहां से चले गए। 2 दिन बाद लश्कर ने अलरुबा से हलब का कूच किया। इस हालत में कि मुजद्दिदुद्दीन, शमसुद्दीन और खतलख के साथ अजबल, मरसीना, जमारा और मिशाल भी साथ थी। एक रोज़ मुजद्दिदुद्दीन, शमसुद्दीन और खतलख अपने घोड़ों की भागें पकड़े अपनी हवेली में दाखिल हो रहे थे। इनके पीछे पीछे अजबल, मरसीना, जमारा और मिशाल थी। जब वो सहन में आए तब सामने से इनकी माँ अबदा बड़ी तेज़ी से निकली और दाएं हाथ से पुप्पी ज़ुहरान और अबीरा भी भागती हुई इनकी तरफ आई। मुजद्दिदुद्दीन पहले बारी बारी अपनी माँ पुप्पी से मिला, फिर बड़े प्यारे अंदाज में इसने अबीरा के सर पर हाथ फेरा। फिर बारी बारी अपनी पुप्पी और माँ की तरफ देखकर कहने लगा, आप दोनों परेशान होंगी कि ये हमारे साथ कौन हैं। मैं इनके नाम बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनती जाइएगा। ये अजबल है, इसके साथ मरसीना, आगे जमारा और फिर मिशाल है। इनके नाम सुनते ही अबदा, ज़ुहरान और अबीरा बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए आगे बढ़ी और बड़े वालिहाना अंदाज में इनसे गले मिलने लगी थीं। जब गले मिल चुकी और तारफ़ हो चुका तब बड़े प्यारे अंदाज में मुजद्दिदुद्दीन ने अबीरा को मुखातब करते हुए कहा, अबीरा मेरी बहन, अब तुम मिल चुकी हो, अब वो काम करो जो तुमने अपने ज़िम्मे लगा रखा है। अबीरा ने बड़े प्यारे अंदाज में कंधे उचकाए और कहने लगी, आज मैं ये काम नहीं करूँगी, आप तीनों भाई खुद ही करें। आप देखते नहीं हमारे घर मेहमान आए हैं। शिकायत अमेज़ लहजे में मुजद्दिदुद्दीन कहने लगा, देख अबीरा, तू पहले खुद ही हम तीनों को घोड़े अस्तबल में नहीं बांधने दिया करती थी, खुद बांधती थी, और आज तुम इनकार कर रही हो। अबीरा मुस्कुराई, कहने लगी, भाई आप भी कमाल करते हैं, मेहमान आए हुए हैं और इनकी मौजूदगी में आप ज़िद करते हैं। आज आप तीनों खुद बांध लें, मैं नहीं बांधूंगी। अबीरा और मुजद्दिदुद्दीन इसकी गुफ्तगू और तकरार से सब मुस्कुरा रहे थे। फिर मरसीना आगे बढ़ी, मुजद्दिदुद्दीन से इसके घोड़े की भाग लेते हुए बोली, आप छोड़ें, मैं घोड़ों को बांधती हूँ। भाई शमसुद्दीन और खतलख आप भी छोड़ दें, सिर्फ ये बताएं कि अस्तबल किधर है। इस मौका पर शमसुद्दीन तड़प कर आगे बढ़ा, मरसीना से कहने लगा, बहन अभी मैं शमसुद्दीन ज़िंदा हूँ, मेरे होते हुए तुम ये काम नहीं कर सकती। फिर शमसुद्दीन तीनों घोड़ों को अस्तबल की तरफ ले गया था। बाकी सब हंसते मुस्कुराते नशिस्तगाह की तरफ जा रहे थे। सब जाकर नशिस्तगाह में बैठ गए। थोड़ी देर बाद शमसुद्दीन भी घोड़ों को बांधकर वहां आ गया। इसके आने के बाद मुजद्दिदुद्दीन ने
गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया और अपनी माँ और पुप्पी को मुखातब करते हुए कह रहा था, अम्मा और पुप्पी, जो कुछ मैं कहने लगा हूँ वो गौर से सुनना। इन चारों को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। इनकी अपनी भी यही ख्वाहिश थी कि यहाँ हलब में रहें। दरअसल ये अलरुबा का अपना मकान बेचकर मुस्तकिल तौर पर जहाँ रहाइश रखना चाहते हैं। मोहतरम समरून और कारलूस तो वहीं रह गए हैं। मकान बेचने के बाद वो भी यहाँ आ जाएंगे। अब्दा ने मुजद्दिदुद्दीन को बात मुकम्मल ना करने दी। बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, बेटा ये तो बहुत अच्छा है, इसलिए ये हमारे करीब हो जाएंगे और हम लोग शादी के बाद अलरुबा के चक्कर लगाने से भी बच जाएंगे। इस तरह यूँ जानो सारी बेटियां ही मेरे पास मेरे करीब रहेंगी। अब्दा के इन अल्फाज से मरसीना, जमारा और मिशाल की खुशियों की कोई इंतहा ना थी। अजबल के चेहरे पर भी दूर दूर तक खुशियां खेल रही थीं। करीब बैठी मुजद्दिदुद्दीन की पुप्पी ज़ुहरान भी मुस्कुरा रही थी। इस सूरत हाल में मुजद्दिदुद्दीन ने अबीरा की तरफ देखा और फिर कहने लगा, अबीरा मेरी बहन, हम सब लोगों ने खाना नहीं खाया, भूख भी लगी हुई है। अब पता नहीं तुम खाना तैयार करके देती हो या खाना देने से आज इनकार कर देती हो। घोड़े बांधने से तो तुम पहले ही इनकार कर चुकी हो। इस पर सब खिलखिलाकर हंस दिए। अबीरा अपनी जगह से उठी। बड़े प्यारे अंदाज में 2-3 बार इसने मुजद्दिदुद्दीन के कंधे दबाए। फिर कहने लगी, भाई कैसी बातें करते हैं, क्या मैं आपका कहा टाल सकती हूँ? घोड़े तो मैंने इसलिए नहीं बांधे कि मैं इन लोगों के साथ रहना चाहती थी, आइंदा बांध दिया करूँगी। देखो कैसे जल्दी जल्दी खाना तैयार करती हूँ। इस मौका पर मरसीना ने आगे बढ़कर अबीरा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अबीरा तुम अकेली काम नहीं करोगी, इतने ढेर सारे लोगों का खाना तुम अकेले किस तरह तैयार करोगी? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। साथ ही जमारा और मिशाल को भी मरसीना ने इशारा किया और चारों हंसी खुशी नशिस्तगाह से निकल गई थी। इन तीनों के जाने के बाद अब्दा ने अजबल को मुखातब किया, बहन आप लोग कितने बहन भाई हैं? अजबल लम्हा भर के लिए उदास हो गई। फिर कहने लगी, हम 3 बहनें थीं, भाई कोई नहीं था। मैं अपने शोहर के साथ यरूशलेम आई। फ्रांस से यरूशलेम आने का मकसद मुकामात मुक़द्दसा देखना था, लेकिन इन इलाकों में आने के बाद सलीबियों का सलूक देखने के बाद दिल शक्नी हुई। लिहाजा हम दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी के साथ मुसलमानों की तरफ मतवज्जे हुए। यरूशलेम से निकलकर अलरुबा आ गए। यहाँ इस वक्त जो सलीम की हुकूमत थी वो भी फ्रांसीसी था। यहाँ हम मुसलमानों से मिलते जुलते रहे। इसी मेल जोल में इस्लाम से आगही हुई और हम तीनों मियाँ बीवी और बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर मेरी दूसरी बहन मरसीना की माँ थी, वो सलीबी लश्कर में अजबल को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अब्दा बोल पड़ी, आगे जो हालात हैं वो तुम बेशक ना बताओ, इसलिए कि मुजद्दिदुद्दीन मुझे बता चुका है कि मरसीना और मिशाल के अहले खाना सफ़र कर रहे थे कि इन दोनों की माँ, एक बहन और 2 भाई मारे गए और ये तीनों बाप बेटी बचे और तुम्हारे पास क़याम किया। ये कहो कि तुम्हारी तीसरी बहन कहाँ है?